हिंदी नेट न्यूज में आपका स्वागत है। सिट एमआर जयपुरिया स्कूल का मऊ में हुआ शुभारंभ। सिट एमआर जयपुरिया स्कूल भारत का सबसे सम्मानित शिक्षा ब्रांड का स्कूल मऊ में खुला। खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से है, जहां सिट एमआर जयपुरिया स्कूल का मऊ में शुभारंभ हुआ है। यूपी में मऊ में एक सीबीएसई पैटर्न स्कूल की स्थापना की गई है, जिसका नाम सिट एमआर जयपुरिया स्कूल का है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई है। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कंपनी के निदेशक, स्कूल के निदेशक कनक गुप्ता जी रहे। कनक गुप्ता जी को बुके देकर सम्मानित किया गया। साथ में आए अतिथियों का भी बुके देकर स्वागत किया गया है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से सभी सम्मानित अतिथियों का बुके देकर सम्मानित किया गया है। कहाँ घर है? आप कहाँ से आते हो? कहाँ पे आपका घर है? कहाँ रहते हो? डुमराव से। स्कूल में नाम लिखवाया है, पढ़ेंगी? आप यहाँ पे आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है आपको? किस क्लास में है आप? यूकेजी है। आप किस क्लास में है? पीजी में। वाह, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। नंदिनी चौरसिया है और मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रताम पत्रत्वाद धर्माप्नोति धना धर्म तथा सुखम। अर्थात विद्या से ही विनम्रता आती है, विनम्रता से ही पात्रता आती है और पात्रता से ही धन और समृद्धि का उत्पन्न होती है। अर्थात यही हमें जयपुरिया में सिखाया जाता है और इसी से हम सभी से अलग बनते हैं। This is Shaurya Chaturvedi from grade 9B and I study in St. Emma Jayapura School, Azamgarh. Today is an overwhelming occasion for us that we are launching St. Emma Jayapura School in Mau. St. Emma Jayapura School is not just a school, but it is said to be a brand because it is different from the other schools. We not only learn English and Hindi, but we have Sanskrit also right from class nursery to class 12. And we have the values of SPICE, that are sustainability, possibility, integrity, collaboration and empathy, which makes Jayapura different from other schools. We are not into studies always, we also have holistic developments, and the overall development platforms are also provided to us. We are having platforms that provide us stages for holistic developments, and if we have to inculcate the values, that is sustainability, we also look not for ourselves but we also think about others. My name is Ishita and I have been studying in Jayapura since 4 years and talking about my journey. So I would say it's been totally full of insights. In fact, even I'm standing in front of you today and speaking like that, it's definitely because of Jayapura. I have got the platform which was provided by Jayapura. I have been participating in many competitions since years on a national levels, which have made my personality shaped like this. So Jayapura, I would say, does not only focuses over the studies, but more than that, we focuses over the extracurriculars of the children, and we make sure that whatever they are good at, they are getting the exact platform to perform it. So that's what we have done. So many things, got so many opportunities in Jayapura, and so such a mind-blowing that learning Sanskrit here, English. The main motive of this school is not only English. We used to learn other languages like Sanskrit, Hindi, and in this school I got many opportunities, and we can say that this school makes me. I was the one who was introvert and got so many opportunities to for the public speaking, venting another school for competitions and all, and this makes and my parents are so happy for this, that the qualities which was hidden in जयपुरिया एजुकेशन के क्षेत्र में 1945 से 1945 से हम शिक्षा के क्षेत्र में, हमारा सबसे पहला कॉलेज कलकत्ता में आया, जिसका उस समय इनॉग्रेशन पंडित नेहरू ने किया था। सब्सिक्वेंटली फैमिली में स्कूल्स लगाए, कॉलेजेस लगाए। हम लोगों के 4 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अब चल रहे हैं। कलकत्ता का कॉलेज है वो तो सरकार के यूनिवर्सिटी के अंदर में आ गया। हमारे 4 मैनेजमेंट कॉलेज चल रहे हैं, लखनऊ, नोएडा, जयपुर और इंदौर। ये NAAC एक्रेडिटेड, वर्ल्ड वाइड, नेशन वाइड बहुत ज़्यादा हाई रैंक
कॉलेजेस हैं जहां पर प्लेसमेंट्स, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज ग्लोबली बेस्ट लेवल्स पर है। हमारा स्कूल है सेंट एमा जबरिया स्कूल, गोमती नगर, लखनऊ, जिसे माना जाता है 1992 में जिसका स्थापना हुआ, जिसे माना जाता है वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द वर्ल्ड। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली इन कैलिफोर्निया अमेरिका में उन्होंने यहाँ पर आकर बोला कि जयपुरिया इज द स्कूल फॉर ग्रेटर गुड इन द वर्ल्ड। 2014 में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम और एक्सपैंड करेंगे। हम प्रमोटर्स के साथ कोलैबोरेट कर इंडिया के टियर 2, टियर 3 सिटीज में स्कूल्स एस्टैब्लिश करेंगे, स्कूल बनाएंगे। और मुझे आप लोगों के साथ बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2014 से लेकर अब तक ऐसे 60 स्कूल्स हैं जो हम इंडिया में लगा चुके हैं। 55,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ खेल स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। 3,000 से ज़्यादा एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें अब रिकग्नाइज किया जाता है एज द मोस्ट रिस्पेक्टेड एजुकेशन चेन इन इंडिया। जो हुआ है डॉक्टर शिशिर जायसवाल जैसे प्रोमोटर्स, पार्टनर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनके सहयोग से, योगदान से हमें मीडिया से बहुत सपोर्ट मिला है, हमें पेरेंट्स से बहुत सपोर्ट मिला है। और इसका कारण ये है कि जयपुरिया इज एन एजुकेशन विच इज फ्यूचरिस्टिक बट रूटेड इन लेगेसी। जिसका मतलब ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचर की बात करते हैं कि क्या करियर्स रहेंगे हमारे बच्चों के लिए, उनको किस तरीके से ग्रूम करना है, 21वीं सेंचुरी की जो स्किल्स होते हैं वो हमें बच्चों को कैसे देना है, लेकिन रूटेड इन कल्चर। मतलब हम लोग अपने बच्चों को अपने इतिहास से भी जोड़ते हैं और फ्यूचर से भी जोड़ते हैं। जयपुरिया शायद विश्व भर में सिर्फ एक ऐसा स्कूल है जहां पर नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक बच्चों को संस्कृत में पढ़ाई करवाई जाती है। इट्स एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, लेकिन संस्कृत यहाँ पर हमारे बच्चों के लिए है, कॉन्वर्सेशनल संस्कृत, देव भाषा के नाम पर। इसे वर्ल्ड वाइड एक्लेम भी मिला है और इससे हम लोगों ने देखा है कि बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसमें हम लोग करिकुलर, को करिकुलर और स्पिरिचुअल लर्निंग, जिसमें उनके अंदर की भी डेवलपमेंट हो, वो सारे हम लोग उसके ऊपर फोकस कर पा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे स्कूलों में बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है कॉम्पिटिशन्स की, जिसमें वो चाहे वो खेल कूद में हो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज में हो, संगीत में हो, ड्रामा में हो, वो सारे अपॉर्चुनिटीज हम लोग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं नेशनल लेवल पर। अभी तक आजमगढ़ के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे नेशनल लेवल पर, मऊ के बच्चों को भी ये अपॉर्चुनिटी मिली। मऊ का जो हमारा स्कूल है, दिस विल बी द स्कूल नंबर 61 फॉर अस, 61वां स्कूल है जो हम लॉन्च कर रहे हैं। आज इसका एडमिशन की प्रोसेस हम लोग शुरू कर रहे हैं। हमारा फोकस हमेशा ये रहता है कि टीचर्स का भी हम लोग डेवलपमेंट करें। हम लोग चाहते हैं, क्योंकि अच्छे टीचर्स कहीं से भी आ सकते हैं, अच्छे टीचर्स हर शहर में होते हैं, लेकिन उनको ग्रूम करना, फर्दर अपॉर्चुनिटीज देना, उनकी ट्रेनिंग करना, ये हमारा बहुत बड़ा संकल्प है, फोकस है हिंदुस्तान में। हमारे आजमगढ़ की स्कूल की प्रिंसिपल सुधरनीति मैम, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दी हैं अपने टीचर्स को ग्रोथ के लिए। उन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस रखा है कि टीचर्स चाहे वो नॉर्थ ईस्ट से आए, चाहे साउथ इंडिया से आए, चाहे वो लखनऊ से आजमगढ़ ट्रांसफर। जयपुरिया सेंट एमा जबरिया स्कूल मऊ के बच्चे इतिहास जरूर बनाएंगे। वंस अगेन deepest congratulations to Dr. Shishir Jaiswal ji and the entire family for this wonderful gift to the city of Mau in the form of St. Emma Jayapuriya. मैं विशाल जायसवाल, डायरेक्टर सेठ एमा जयपुरिया स्कूल मऊ। सिर्फ हम यहाँ की जनता को एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि एजुकेशन ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो हम अपनी ज़िंदगी के हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। हम लोग क्योंकि छोटे गाँव से पढ़े हुए हैं, जिन चीज़ों का अभाव रहा है, उन सारी चीज़ें के अभाव को पूर्ति करके हम लोगों ने इस स्कूल को लाया है। इसके पहले हम लोग 2019 में आजमगढ़ में सेठ एमा जयपुरिया स्कूल आजमगढ़ ला चुके हैं और अब हमें ये पता चलता है कि एजुकेशन का क्या महत्व है। और एजुकेशन सिर्फ इस महत्व का नहीं होता है सिर्फ बुक के द्वारा जो पाई जाए, हम पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और किस डिपार्टमेंट में किस बच्चे की क्या रुचि है, पहले हम उनकी रुचि को जानना चाहते हैं और फिर उस रुचि पे कार्य करके हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और आप सभी देशवासियों, अपने पूरे जनपद वासियों के लिए ये एक मैसेज है कि एजुकेशन के अलावा और कोई तरीका नहीं है कि हम अपनी लाइफ में जो भी चाहें वो अच्छी क्वालिटी। बिना क्वालिटी के तो आप किसी भी चीज़ में आप सर्वाइवल नहीं है। और क्वालिटी का मतलब है कि सबसे सीख के, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन हम सबकी अच्छाइयों को लेके सबसे सीख के और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है।
तो क्या संदेश है आप लोगों को? बस ये संदेश देना चाहते हैं कि ये एक मऊ के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हम ये चाहेंगे कि ये हमारे मऊ जनपद का भी बच्चा जाके जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अपने नाम को रोशन करे अपने जनपद। जायसवाल, डायरेक्टर सेठ एम आर जयपुरिया स्कूल मऊ। सबसे पहले मैं अपने जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि आपके अपने जनपद में सेठ एम आर जयपुरिया स्कूल की नई ब्रांच ओपन हुई है। हम आप सभी से आग्रह करेंगे कि अपने बच्चों के भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए सेठ एम आर जयपुरिया स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं। उनका उज्जवल भविष्य के लिए आप जरूर सेठ एम आर जयपुरिया से जुड़ें। भव्य रूप दिया आपने स्कूल को है और बड़ी दूर की तो है, मगर फिर भी लोगों को क्या संदेश देंगे? देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब तक आपको अपनी जरूरतों का एहसास नहीं होगा तब तक आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। इन जरूरत का एहसास हम लोगों ने किया। हमारे मऊ जिले, हमारे आजमगढ़ जिले, हमारे अगल बगल के क्षेत्र में यह देखा गया कि अच्छे स्कूल नहीं है। हम ये नहीं कर सकते कि जो स्कूल हैं वो अच्छे नहीं है, लेकिन जब हमारे बच्चे कहीं बाहर जाते हैं और कहीं बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, बड़ी बिल्डिंग देखते हैं, बड़े स्कूल देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं नर्वस हो जाते हैं। उनके अंदर क्वालिटी होती है, उनके अंदर क्षमता होती है, लेकिन वो अपने क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाते क्योंकि वहां पे जाकर के वो नर्वस हो जाते हैं। इन स्थितियों को देखते हुए हमें लगा कि हमारे आजमगढ़, हमारे मऊ जनपद में भी बड़े स्कूल होने चाहिए जहां से हमारे बच्चे शिक्षा लेकर के हमारे जनपद का नाम रोशन करें। इसी उद्देश्य से सेठ एम आर जयपुरिया स्कूल मऊ जिले में